नमस्कार, स्वागत है आपका। और अभी अभी आईएमडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर जारी है, जहाँ पर उन्होंने अभी तक ये कहा है कि अगले 3-4 दिन में यहाँ पर केरला में मानसून का ऑनसेट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एल निनो को लेकर क्या कहना है और आगे जून का ऑनसेट और जून की बारिश कैसे रह सकती है, आइए सुनते हैं आईएमडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। Reduction in intensity of heat wave is expected after 3 days. From 30th onwards, we can expect the reduction in heat wave conditions gradually, and also area is shrinking. Area of heat wave conditions is also shrinking from 30th onwards. So you may ask why it is. It is mainly because that a western disturbance is approaching northwest India on 30th. In association with that, there will be moisture incursion from Arabian Sea. So therefore, there could be some thunderstorm activity in plains of northwest India and rain activity also in western Himalayan region. So that is the reason why we are expecting fall from 30th. Now let us look at heat wave days. If we just look at, as I have already explained you, the maximum number of heat wave days in the month of May has been over Rajasthan and Gujarat. West Rajasthan 11 days and Gujarat you have 12 days of heat wave conditions. 9 days in the eastern Rajasthan. Then of course you have got 7 days for Haryana, Chandigarh, Delhi, and Telangana and Tamil Nadu also 7 days. So these are the highest zone where heat wave conditions have been higher. So apart from that, there has been 3 to 5 days in many parts of the country, except in central part, that is Vidarbha, Marathwada, and Chhattisgarh. We did not have any heat wave conditions. Otherwise, entire central India, interior peninsular India, eastern India, northwest India have been under the grip of the heat wave conditions during the month. Now, if you just compare the performance of heat wave forecast that we gave for the month of May and what has happened, this is a comparison. On the left-hand side, that was the heat wave forecast map which we issued on the 1st of May, and right-hand side is the actual number of days. You can see that it is very well matching except the central part of the country, where you have got green here, but it was also told that number of days will be higher. So apart from that, otherwise, we told that normally 3 days of heat wave occurs, and we can expect 5 to 8 days above normal heat wave days for South Rajasthan, West Madhya Pradesh, Vidarbha, Marathwada, and Gujarat region. That means 8 to 11 days we expected over these areas. It occurred everywhere except Marathwada, Vidarbha, and adjoining areas. It has been realized. Similarly, we told about 2 to 4 days over remaining parts of Rajasthan, East Madhya Pradesh, Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, Uttar Pradesh, and some parts of Chhattisgarh, interior Odisha, etc. And observed was 3 to 6 days over the remaining parts of the country. ऑलराइट, तो आईएमडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ऑफ कोर्स उसके डिटेल्स हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ जो हमें सुनने को मिला है वो यही है कि मॉनसून इस बार नॉर्मल से बेहतर रह सकता है। ऑफ कोर्स अप्रैल और मई का महीना जिस तरह से रहा है, हीट वेव के दिन नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन अब मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम मनचंदा हैं। असीम नमस्कार, आप वहाँ पर हैं और काफ़ी डिटेल्स में वहाँ पर आता हुआ। हीट वेव एक बड़ी चिंता है, मानसून शायद इस वक्त बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन क्या कुछ डिटेल्स हैं जो आज आईएमडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल के फिलहाल आ रही हैं? जी सही कहा आपने, हीट वेव इस बार बहुत बड़ी चिंता है। अगर हम देखें तो पहले से मुकाबले हीट वेव्स के डेज काफ़ी बढ़ गए हैं। इस बार 2 से लेकर के 8 हीट वेव्स पर मंथ जो है वो दिखाई जा रही है और इस पर मई में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर मैं मानसून की बात करूं तो आईएमडी पहले ही अपना अनुमान दे चुका है कि इस बार मानसून अबोव नॉर्मल रहेगा। जो लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल है वो 104% से लेकर के 110% होगी। अब आईएमडी अपना दूसरा मानसून का फोरकास्ट दे रहा है। ये बता रहा है कि कौन कौन से राज्य के अंदर आपको अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है और ये बारिश कब होगी। खासतौर पर कि अब मानसून अपना एडवांस काफ़ी तेज़ी से कर रहा है। अगले 3 से 4 दिन यानी कि 31 तक मानसून केरल पहुंच सकता है और उसके बाद पूरे भारत को धीरे धीरे कवर कर लेगा। लेकिन अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो उत्तर भारत में अभी भी काफ़ी हीट वेव है। कई राज्यों में ऑलरेडी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट ऑलरेडी जारी कर दिया है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सब जगहों पर हीट वेव के लिए रेड अलर्ट ऑलरेडी मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। आज अगर मैं बात करूं राजस्थान के फौलादी की तो टेम्परेचर एक बार फिर 50 डिग्री के पार वहां पर पहुंच गया। दिल्ली में इस वक्त काफ़ी भीषण गर्मी है, 40 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा। तो हीट वेव तो कंसर्न है ही है एक, लेकिन अब मानसून की प्रोग्रेस सिस्टम काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है और जल्दी मानसून केरल पर दस्तक देगा और पूरे भारत को कवर कर लेगा।
एब्सोल्युटली अजीम, इस वक्त यही देखने के लिए है। और जैसे आपने कहा कि रेड अलर्ट अभी ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में है और 30 मई तक यहाँ पर रह सकता है और उसके बाद ग्रेजुअली यहाँ पर हम देखेंगे कि नॉर्मल थोड़ा सा टेम्परेचर आता हुआ नजर आएगा और मानसून अच्छा है उसकी खबर ऑफकोर्स यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव, इंडस्ट्री के लिहाज से, सरकार के लिहाज से, इन्फ्लेशन एंड ऑफकोर्स एग्रीकल्चर के लिहाज से एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। शुक्रिया असीम हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ SMC की वंदना भारती भी हैं। वंदना नमस्कार। एक नॉर्मल मानसून की बातचीत की जा रही है, कैसे देखती हैं आप ओवरऑल एग्रीकल्चर के लिहाज से और एग्री स्पेस में ही क्या आपको लगता है यहाँ पर कुछ कारोबार करने के लिए आज स्ट्रैटेजीज हैं? जी मनीषा, यहाँ पे रिएक्शन ऑलरेडी आ रहा है और सबसे ज्यादा रिएक्शन हमारे गोवा कॉम्प्लेक्स में आता है क्योंकि हम कहते हैं कि प्रॉक्सी एक मॉनसून डेरिवेटिव है ये, तो वहाँ पे एक गिरावट जो है वो देखने के लिए मिल रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो यहाँ पे बन सकती है। तो ग्वार में ही मैं ग्वारगम में इनफैक्ट यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन देना चाहूंगी। 10,750 के करीब सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी, 10,600 का टारगेट है। तो स्टॉप लॉस लगाना होगा 10,810 का। और कुछ और कमोडिटीज हैं जैसे कैस्टर है, वहां पे भी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक कमोडिटी है जहां पे कि मॉनसून से पहले यहाँ पे फिर से एक बाइंग आई है, ये मुझे लग रहा है कि टर्मरिक है। तो टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग कंटिन्यू रह सकता है। 19,950 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। जो टारगेट है वो थोड़ा यहाँ पे लंबा बनेगा, मुझे लग रहा है कि 20,500 तक यहाँ पे प्राइसेस एक बार आ सकता है, 20,000 को क्रॉस कर सकता है। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 19,700। तो बिकवाली यहाँ पर ग्वार में की जानी चाहिए, लेकिन खरीदारी के मौके यहाँ पर हल्दी में ढूंढ सकते हैं आप। साथ ही अगर नॉन एग्रो की बात करें तो उसके लिए प्रथमेश माल्या हमारे साथ जुड़े हैं। प्रथमेश नमस्कार। और आपसे सबसे पहले मेटल्स पे ही एक राय लेना चाहेंगे। कुछ अपॉर्चुनिटी बाइंग यहाँ पर गोल्ड में, सिल्वर में और बाकी बेस मेटल्स में भी देखने को मिली है। आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या होगी? आई थिंक लास्ट कुछ वीक्स में काफी वोलेटाइल रहे काउंटर गोल्ड, सिल्वर और मेटल्स, हालांकि इसमें पॉजिटिव मोमेंटम आया है। बट मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको गोल्ड और सिल्वर में नेक्स्ट पॉसिबल 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में नीचे के रुख देखने को मिल सकते हैं और सेल ऑन रैली इसमें एडवाइजेबल रहेगी। स्पेसिफिकली जो गोल्ड का जून वायदा जो है 71,760 पे इसको सेल करना चाहिए, 71,880 का स्टॉप लगाना चाहिए और नीचे में टारगेट 71,560 के लगाने चाहिए। सिमिलरली सिल्वर में भी जुलाई वायदा जो है सेल करने की सलाह रहेगी 92,300 पर, 92,900 का स्टॉप रहेगा और टारगेट 91,300 के लिए रहेगा। प्रथमेश, साथ ही अगर कच्चे तेल की बात करें तो पिछले हफ्ते 3 से 4% की यहाँ पर गिरावट थी, खरीदारी यहाँ पर भी लौटते हुए नजर आई है। क्या करेक्शन हो चुकी है या फिर सिर्फ इस अपटिक पर बिकवाली की राय देंगे? आई थिंक सेल ऑन रैलीज बेटर रहेगा यहाँ पे। जो लास्ट वीक का फॉल है वो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में जारी देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से इसको 6,530 के पास में सेल करना चाहिए, 6,620 का स्टॉप लगाना चाहिए, नीचे में टारगेट 6,380 के रखने चाहिए। वंदना, एक फाइनल सवाल आपसे भी लेना चाहेंगे। यहाँ पर अगर एग्री की बात करें तो आपने ऑफकोर्स टर्मरिक और कैस्टर में अपना व्यू बताया है, लेकिन जिस तरह की तेजी हमने दालों में आते हुए देखी है, खाने के तेलों में यहाँ पर फिर से बढ़त देखने को मिली है, गेहूं को लेकर फिर से सरकार को लेकर कुछ चिंताएं हैं, तो जो ये एसेंशियल कमोडिटीज हैं यहाँ पर कैसे देखती हैं आप प्राइसेस? मुझे लग रहा है कि वीट बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पे हो गया और यहाँ पे वीट के जो प्राइसेस है ओवरऑल मुझे लग रहा है कि करीब करीब यहाँ पे 5 to 6% राइस होने की यहाँ पे बात हो रही है और सप्लाई साइड थोड़ा सा कंसर्न रख रहा है। हालांकि अभी भी स्टॉक्स हैं यहाँ पे, पल्सेस में ऑलरेडी यहाँ पे कंसर्न ऑलरेडी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट मूव है ये यहाँ पे सोयाबीन और सीपीओ में फिर से आएगा। रिसेंटली हम लोगों ने करेक्शन आता हुआ देखा था, लेकिन 2 हफ्ते से यहाँ पे एक रिबाउंड आ रहा है और मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पे इनफैक्ट इंटरनेशनल कमोडिटीज है तो हम लोगों ने ऑयल सीड्स पे आता हुआ नहीं देखा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑयल सीड्स में अगर सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन ऑयल में मुझे लग रहा है कि सीबॉट में मुझे लग रहा है कि ओवरऑल यहाँ पे $48 का यहाँ पे एक जो मूव है वो यहाँ पे दिखा सकता है। इनफैक्ट सोयाबीन में भी मुझे लग रहा है कि बढ़त जो है वो बढ़ेगी और कहीं न कहीं 450 का जो एक लेवल है वो आता हुआ हम सीबॉट में देख सकते हैं। तो वहां के मार्केट को फॉलो करते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मस्टर्ड जो कि काफी वीक होकर यहाँ पे ट्रेड हो रहा था वहां पे एक बाइंग आ सकती है और ये टाइम पीरियड है। मुझे लग रहा है जितनी एग्री कमोडिटीज एसेंशियल कमोडिटीज हैं आने वाले 1 से 1.5 महीने में एक डिफाइनिंग मूव यहाँ पे दे सकती है और यहाँ पे हायर हाइज और हायर लोज बनता हुआ हम देख सकते हैं। अगर मॉनसून यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक इंप्रूवमेंट दिखाएगा तो थोड़ा सा अपसाइड केप होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी प्राइसेस एग्री कमोडिटीज में यहाँ पे बढ़ने चाहिए। राइट, तो कुछ सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है ज्यादातर एसेंशियल एग्रीकल्चर कमोडिटीज में, लेकिन एक खास नजर यहाँ पर मॉनसून पर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया प्रथमेश, वंदना, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे सिस्टेमा बायो के कंट्री हेड पीयूष सोहानी। उनसे जानेंगे कि कंपनी कैसे छोटे किसानों को यहाँ पर फायदा पहुंचाती है, क्या है इस कंपनी की प्रोफाइलिंग, करेंगे डिस्कस।
नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 और हमारे साथ अब सिस्टमा बायो के कंट्री हेड पीयूष सोहानी हैं। पीयूष नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कंपनी क्या है ये डाइजेस्टर्स, क्या इनकी यूनिट कॉस्ट है, किस तरह की आपकी पार्टनरिंग है यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में? धन्यवाद मनीषा फॉर मुझे इस शो में बुलाने के लिए। हम सिस्टमा बायो एक सोशल एंटरप्राइज है जो किसानों के लिए बायोगैस प्लांट मैन्युफैक्चरिंग करती है और सप्लाई करती है। बायोगैस प्लांट एक किसी भी डेयरी फार्मर के घर पे इंस्टॉल किए जा सकते हैं और इससे जो किसानों का गोबर होता है वो बायोगैस प्लांट के अंदर अगर डाल दिया जाए तो उससे कुकिंग गैस बनती है इन द फॉर्म ऑफ बायोगैस, जिससे किसानों को एलपीजी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसका जो बायो फर्टिलाइजर होता है वो खेतों में डाला जा सकता है और उसके कारण केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम होता है। इसकी कीमत जनरली 35 से 40 हज़ार रुपए के आसपास होती है और एक बार लगा लेने के बाद अगले 10 से 15 सालों तक एलपीजी सिलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। पीयूष, एज ऑफ नाउ कितने डेयरी फार्मर्स के साथ आपने यहाँ पर पार्टनर किया है? किस तरह का रिस्पांस ऑन ग्राउंड आपको देखने को मिला है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। हम 21 राज्यों में हमने बायोगैस प्लांट लगाए हैं। 80,000 से ज्यादा बायोगैस प्लांट्स आज फैमिली यूज कर रही हैं और भारत में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि इसका बेनिफिट बहुत लोगों को हो सकता है। पीयूष, ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज से मिलता हुआ नजर आया है और जिस तरह का आपने काम किया है और जैसे आपने कहा कि 80,000 यूनिट्स अब तक आप यहाँ पर इंस्टॉल कर चुके हैं, तो कितने समय में ये किया है और किस तरह का पॉलिसी पॉजिटिवनेस आप यहाँ पर देखते हैं? तो हमने ये काम पिछले 5 सालों में किया है और अब हमने इस तरह की ग्रोथ जो हमारी हो चुकी है, अब हम हर महीने 3 से 5 हज़ार बायोगैस प्लांट हर महीने लगा रहे हैं। गवर्नमेंट का इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट है, स्पेशली फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जहाँ हर बायोगैस प्लांट लगाने पर हर फार्मर को करीब 14,300 रुपए की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स की अलग एडिशनल सब्सिडी मिलती है। अच्छा इसमें सपोर्ट है गवर्नमेंट का। एक और पॉजिटिव पीयूष, ऑफ कोर्स जब हम यहाँ पर बायोगैस की बात करते हैं, बायो फर्टिलाइजर की बात करते हैं, तो साथ ही साथ एनवायरनमेंट और कार्बन क्रेडिट्स बहुत दूर नहीं है। किस तरह से आपने यहाँ पर ये इकोनॉमिक सेटल होते हुए देखी है? बहुत अच्छा पॉजिटिव बेनिफिट मिलता है इसका। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, एक बायोगैस प्लांट अगर एक फैमिली यूज करती है तो जनरली 8 से 10 कार्बन क्रेडिट वो किसान जनरेट करता है, मतलब 8 से 10 टन ऑफ CO2 एक साल में वो सेव करता है। और ये कार्बन क्रेडिट्स कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी अगर इस सिस्टम को स्पॉन्सर करती है तो वो कार्बन क्रेडिट वो कंपनी अपना ऑफसेट कर सकती है। आज तक हमने करीब 4 लाख कार्बन क्रेडिट हर साल जनरेट हो ऐसे कार्बन प्रोग्राम्स हमने करे हैं और फ्यूचर में हम इसको कम से कम 10 गुना करने का प्लान कर रहे हैं। अमेजिंग। पीयूष, अब तक जैसे आपने कहा कि 5 साल में 80,000 यूनिट्स लगा चुके हैं, महीने के 3 से 4 हज़ार आप यहाँ पर लगाते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट इन द पाइपलाइन आपके लिए क्या है? अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर बन चुकी है, किस तरह की फंडिंग है, किस तरह की आगे की ग्रोथ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? बहुत पॉजिटिव ग्रोथ है। जैसे इंडिया अगर आप मार्केट देखें तो इंडिया में करीब 7 करोड़ डेयरी फार्मर्स हैं। दैट मींस देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल। और अगले 2030 तक अगले 5 से 6 सालों में हम लोग 10 लाख बायोगैस प्लांट्स इंडिया में प्लान करने का सोच रहे हैं और इससे बहुत सारे किसानों को इसका फायदा मिलेगा। पर एनम ग्रोथ किस तरह की देखते हैं पीयूष फिर आप, और किस तरह की फंडिंग आप यहाँ पर मार्केट्स में कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि सेल्फ सस्टेन्ड ये बिजनेस है जिस तरह की फंडिंग ऑलरेडी आ चुकी है? ये सेल्फ सस्टेन्ड बिजनेस है, बट इसके अलावा हम सीरीज C भी रेस करेंगे जो करीब 50 to 70 करोड़ का होगा। और इसके अलावा जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 20 से 30% पर ईयर हम ग्रोथ का प्लान कर रहे हैं। पीयूष, आपने कहा आप 21 स्टेट्स में हैं, लेकिन कौन सी स्टेट्स में यहाँ पर ज्यादा तवज्जो है एज ऑफ नाउ? हमारा वेस्ट और साउथ में थोड़ा ज्यादा है, बट इसके अलावा हमने पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी हमने काम अभी शुरू कर दिया है। और जो ये आप जैसे आपने कहा कि 7 करोड़ यहाँ पर डेयरी फार्मर्स हैं, छोटे बड़े काफ़ी सारे हैं, पर डेयरी फार्मर्स हम जानते हैं कि बेटर अर्नर्स हैं काफ़ी दूसरी एग्रीकल्चर सेक्टर से। अगर हम इसको यहाँ पर लें तो कितना इजी है कन्विंसिंग, और कितना आपको लगता है ये रीच होता हुआ नजर आएगा?
जैसा हम देख रहे हैं, जो हमारे किसान हैं वो ये समझते हैं कि उनके लिए एलपीजी की प्राइस आगे जाके बढ़ने वाली है और फर्टिलाइजर की प्राइस भी बढ़ने वाली है, तो उसके लिए ये बायोगैस सोल्यूशन बहुत इकोनॉमिकल उनके लिए लगता है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है और इसके अलावा जो हमारा कार्बन प्रोग्राम है, इसके थ्रू जो हम सब्सिडाइज कर पाते हैं, प्राइस में रिडक्शन कर पाते हैं, इसके कारण ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स इसको अडॉप्ट करने की इच्छा रखते हैं और कर भी रहे हैं। एब्सोल्युटली। एक फाइनल सवाल देन पीयूष, हम ज़्यादातर देखते हैं कि 5-7 साल जब कंपनी एक चीज़ करती है तो बहुत जल्दी दूसरी चीज़ों में डाइवर्सिफाई करने भी लगती है। आप कहेंगे कि आप इस पे फोकस्ड रहेंगे या फिर कुछ और भी है पाइपलाइन में? हम इसी पे फोकस रहेंगे क्योंकि हमारा जो कंपनी है ये सोशल एंटरप्राइज है और फार्मर्स के लिए ही काम करेंगे। बट हम बायोगैस के एप्लीकेशंस पे हम और ज़्यादा एंटर करेंगे, जैसे हम बायोगैस से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं, बायोगैस के थर्मल यूजेज हम और कैसे किसानों के लिए ला सकते हैं, उसके लिए हम अप्लायंसेस डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ऑल राइट पीयूष, कॉन्ग्रेचुलेशंस और खुशी है आपसे बात करके और आशा है आपसे आगे भी यहाँ पर बात होगी। थैंक यू सो मच आज हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए और काफ़ी डिटेल में ये इन्फॉर्मेशन शेयर भी करने के लिए। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।